اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و علی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قومی اسمبلی میں چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان نے دبند خطاب کیا اور اتحادی حکومت کو منہ توڑ جواب دیا، بلکہ منہ توڑ جواب دیے بلاول بھٹو کو، راجہ پرویز اشرف کو اور باقی لوگوں کو، اور صحیح انہوں نے حق ادا کیا عمران خان کا جانشین ہونے کا۔ دوستو، حکومت جو کوشش کر رہی ہے 8ویں ترمیم کی، 8ویں ترمیم نہیں، یہ جو ججز کو خاص طور پہ جو چیف جسٹس ہیں قاضی صاحب، اس کو ایکسٹینشن دینے کی، اس کے لیے جو ترمیم کر رہے ہیں یہ، تو اس کے لیے آج اجلاس ہوا تھا، کافی بحث مباحثہ ہوا، جس میں مسٹر گوہر نے اپنا حق ادا کیا اور صحیح ان کو جواب دیا۔ ان کی یہاں تک کہ ان کے جو ممبر پورے نہیں تھے تو ان کو مجبوراً اجلاس پہ ملتوی کرنا پڑا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اپنے اس مضمون جو ان کا ارادہ ہے اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا اپنا ضرور دبانا ہے، میری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، لائک کیا کریں، کمنٹس کیا کریں۔ آئیں سنتے ہیں بیرسٹر گوہر کی وہ تقریر جو اس نے آج قومی اسمبلی میں کی۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، میں سمجھتا ہوں آج ایک سیڈ ڈے ہے۔ دا وے بلاول صاحب نے بولا، جو از انداز گفتگو استعمال کی، جو اشارے کیے، جو لات ہٹائے، میں سمجھتا ہوں یہ کسی بھی پارٹی کے چیئرمین کے لیے ایک ڈیتھ ہے۔ ہی از پولیٹیکلی ڈیڈ۔ اس کے پاس اس قوم کے لیے یہ ویژن نہیں ہے۔ وہ شاید آکسفورڈ کے جعلی ڈگری سے یہاں پہنچا ہے۔ اگر اس کے پاس ویژن ہوتا تو وہ یورپ امریکہ سے یہ ویژن لے کے آتا کہ لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو سب کچھ اپنے دلوں پہ لے چکے ہوتے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ لازم ہے کہ یہ لائن ڈرا کی جائے کہ یہ پارلیمان مضبوط ہے یا کوئی اور مضبوط ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کی اٹینشن چاہیے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، آپ تھوڑا اٹینشن کر لیں۔ جناب اسپیکر، یہاں ہم بیٹھے ہوئے اس پارلیمان میں، آپ کو صرف یہ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے ویب سائٹ پہ بنے ہوئے کرا دیتا ہوں۔ ایک دن کا خرچہ 6.5 کروڑ روپے آتا ہے اس پارلیمان کا۔ آج آپ کا 77واں دن ہے سیوان میں، 77واں دن ہے، 9 سیشن ہے، 77واں دن ہے، ایک دن کا خرچہ 6.5 کروڑ۔ لیکن لیجسلیشن پہ آپ کے ویب سائٹ سے میں نے فیکٹس نکالے ہیں، 14 بل پاس ہوئے ہیں، 115 منٹ کی لیجسلیشن ہوئی ہے سیوان میں، باقی ساری گالم گلوچ ان کی طرف سے ابتدا ہوئی۔ یہی وہ سٹرگل ہے جناب اسپیکر، یہی وہ سٹرگل ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ راستے روک لیں۔ یہی وہ سٹرگل ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 115 منٹ کی لیجسلیشن ہو جاتی ہے 77 دنوں میں 6 کروڑ 50 لاکھ ایک دن کے خرچے پہ۔ یہ کون لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس ایجنڈا چلنے کا نہیں ہے؟ یہ ایجنڈا کون چلوا رہا ہے؟ یہ آپ نے ہمارے ساتھ 30 تاریخ کی آپ کے منٹس میرے پاس موجود ہیں۔ آپ نے میرے پاس منٹس بھیجے کہ آخری اجلاس جو ہمارے اس سیشن کا ہوگا، یہ اس کا پیرا نمبر 3-4 سے میں پڑھتا ہوں۔ There will be no session in September 2024. The last day would be Friday if there is on the 6th of September. If 6th September is a close holiday, then September 5th. جناب اسپیکر، کل جس طریقے سے ذکر کیا ہے خواجہ آصف صاحب نے، کل بھی خواجہ آصف صاحب باہر گئے تھے۔ اس ملک کی ہسٹری کوئی اچھی نہیں ہے، یہ سارے اپنے اپنے ممالک میں دیکھیں، اپنے وقت کے حکومتوں میں دیکھیں، ان کی حکومت میں کیا ہوا ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کا بیٹا سپریم کورٹ سے گیٹ سے اریسٹ نہیں ہوا، اسی کی حکومت تھی۔
वज़ीर आज़म अपना बेटे को नहीं बचा सका, कौन लेके गया उसको? क्या था वो? मौजूदा हुकूमत में अगर इतनी ही पावरफुल है, ख्वाजा साद रफ़ीक को किसने अपलोड करवाया? अगर ऐसा ही है तो राजा साहब से मैं पूछता हूँ, राजा साहब आपकी पार्टी वज़ीर आज़म के हटाने के बाद जब CAC की मीटिंग हुई है, जनाब डिप्टी स्पीकर आपको अच्छी तरह मालूम है, रात को ये फैसला हुआ शहाबुद्दीन साहब कल वज़ीर आज़म होंगे, उसके घर लोग चले गए, उसको उठाया, राजा साहब वज़ीर आज़म होंगे। आज बताओ किसने आपको वज़ीर आज़म बनवाया था? आपकी CAC की पार्टी की हकीकत चली थी? बताएं आप। काज़मी साहब आपके रिलीजियस मिनिस्टर थे, आपकी ही हुकूमत थी, बताए किसने उसको अरेस्ट करवाया था? आप बचा सके थे? ये ईमान कमज़ोर होता रहा है। बहुत अच्छी बात हो गई थी, हम इसलिए आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। ख्वाजा साहब ने कल प्रोटेस्ट किया था, हमारी वजह से नहीं, मेरे और इसकी कोई तलख कलामी नहीं हुई, मेरी ख्वाजा साहब की कभी तलख कलामी नहीं होती, पर एक बात ज़रूर हुई थी। ख्वाजा साहब ने कहा, और मैं कभी नहीं कहता जिस तरह ट्वीट की बात हो रही है, जनाब स्पीकर ये जो जगह बैठी हुई है, हम बैठे हैं, ये हमारा ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन नहीं है कि यहाँ एक दूसरे की सटल कर दे कि आप कितने बुरे थे, मैं कितना अच्छा हूँ, आपने कितने लोगों को ज़द-ओ-कोब किया, मैंने कितने ज़द-ओ-कोब किया। लेकिन ये बात आपको वसूख के साथ कैसा हो, पूरी दुनिया कहती है कि आपकी हुकूमत में सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए। इतनी करज रखो कि ये मान लो। लीडर तख्तदार पे पहुंचते, आपने भूला ना बोटो को, लीडर तख्तदार पे पहुंचते हैं ताकि कौम बचे। वो कहते हैं जुल्म के खिलाफ हमने लड़ना है। जनाब स्पीकर, हम अगर कुर्बानी ना दे, मैं तो फर्स्ट टाइम इस असम्बली में हूँ, ख्वाजा साहब तो मेरी उम्र से ज़्यादा इस असम्बली में रहे, क्या हमने सीखा है, किस तरीके से आगे बढ़ना है? ख्वाजा साहब को मैंने ये लफ्ज़ सिर्फ कहा, मैंने कहा ख्वाजा साहब इस कमेटी में हम बैठे हैं, ये तो हमारी एक प्रपोज़ल थी, ये प्रपोज़ल सबसे पहले तो आपके अपोजिशन लीडर ने बनाया है। मैं इस बंदे को बड़ा दाद देता हूँ, आई एम सो प्राउड ऑफ योर लेगेसी उमर, सो प्राउड ऑफ योर लेगेसी। ये लेगेसी है। बताएं 22 साल में एक लफ्ज़ कोई एक बंदे का निकाले कि इस ईवान से स्पंज हुआ, हम सारे बाहर चले जाएंगे। इस ईवान में जब 22 साल रहा है, एक लफ्ज़ कोई स्पंज होने वाला बताए। मैंने आपसे कल रिक्वेस्ट की थी ख्वाजा साहब से, मैंने कहा ख्वाजा साहब हम बड़े दिल खोल के आपके साथ बैठे हैं, हमें स्पॉइलर फिगर नहीं बनना चाहिए, हमें हेट फिगर नहीं बनना चाहिए, हमें अब आइसोलेट करके इस मैटर को रिजॉल्व करना चाहिए, डिफरेंसेस भूलने चाहिए। मैंने इनको ये गुजारिश की कि हमारे पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस कभी एक नहीं हो जाएंगे। वी एंड यू कुड नेवर एवर बी द सेम ऑन द सेम पेज एवर इन लाइफ, बट दैट डजंट मीन वी कैन नॉट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। वी गॉट टू मूव फॉरवर्ड। मैंने उनको ये कहा कि ख्वाजा साहब, सबसे पहले नेल्सन मंडेला का मैंने उनको मिसाल दी। मैंने कहा नेल्सन मंडेला अपार्थाइड के बाद आया तो उसने सबसे पहला काम जो किया, अपनी बीवी को डिवोर्स किया। लोगों ने उससे पूछा कि 14 साल जेल में रहे, बीवी आपके पास आती रही, वापस आए हो, गवर्नमेंट में जा रहे हो, तो बीवी को डिवोर्स कर रहे हो। उसने उसका जवाब ये दिया कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अपार्थाइड पे मैंने पत्थर रखना है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने कालों से गोरों से इंतकाम नहीं लेना, लेकिन मेरी बीवी के दिल में आगे गोरों के खिलाफ मैंने या बीवी रखना है या अपने अवाम को लेना है। मैं लीडर हूँ, मैं अपनी बीवी की कुर्बानी दूंगा, पर मैं अवाम के साथ खड़ा हूँगा। मैंने कहा ख्वाजा साहब, अगर आपका इतना दिल नहीं है कि मिनिस्टर होते हुए आप हमारे ग्रीवियंसेस नहीं सुन सकते, इस वक्त ग्रीवियंसेस हमारे हैं। मेरे महीने के नाम लेकर के कहा कि ये 5 महीने हमारे मिसिंग है, उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ क्या हो रहा है, ये अगर आप नहीं हो सकते तो मैंने कहा ख्वाजा साहब, हमारी बड़ी कोशिश है, हम चाहते हैं कि आप सीट पे रहें, लेकिन फिर आपका इस्तेकाक है, बेशक आप स्पीकर को कहें, आप ये न रहें। जनाब स्पीकर,
2 दिन हम आगे जाते हैं, एक स्टेप आगे जाते हैं, कोई ना कोई पीछे आ जाता है और ये 4 स्टेप बैक हम चले जाते हैं। इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये ईमान नहीं चल पाएगा, ये कौम सफ़र हो जाएगी, ये डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी, ये स्पेस आपका कोई और ले जाएगा, ये गैर सियासी कुव्वतें आपकी ले जाएगी, ये इंतहा पसंद कुव्वतें आपकी आ जाएगी। ये जिसको आप कहते हैं आइसोलेट करते हैं, अच्छी तरह देख ले क्या पूरी दुनिया इस बात की गवाही नहीं दे रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 70% अवाम की सपोर्ट है। मैं आपको स्पीकर साहब वसूख के साथ कहता हूँ, ये 70% पाकिस्तान वो कैदी 804 के इशारे पे उठता है। याद रखो, उस दिन से डरो जो वो हंगर स्ट्राइक पे गया, और अगर उसने इशारा किया कि सड़कों पे आ जाओ तो बांग्लादेश को भूल जाओगे। पर वही है और हम यही चाहते हैं कि माजी को भूल जाओ, पाकिस्तान को रवंडा नहीं बनाना, पाकिस्तान को नहीं रवंडा हमने बनाना, पाकिस्तान को बेहतर करना है। खुदा के लिए ये ईवान में बैठ करके ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये आईन की ओथ जब उठाते हैं तो हम कहते हैं कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को हम सेक्रीफाइस करेंगे कौम की। ये पावर इख्तिदार आनी जानी चीज़ है, ये कौम की अमानत है। पावर आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को ज़ेर करें, कभी ये कोशिश ना करें कि उनमें से कौन जीतता कौन हारता है। हमारे हार और जीत में ये पार्लियामान हार जाएगा, हम उधर के उधर रह जाएंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर, इट इज़ टाइम है कि कॉमन सेंस प्रिवेल करे। अगर कोई केस कोर्ट में मौजूद है, मैं खान के किस किस केस को उठा दूँ, साइफर का उठाऊँ, इद्दत का उठाऊँ, तो शखाना का उठाऊँ, फिर आप लोगों का उठाऊँ। ख्वाजा साहब 2013 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपके केस में 45,000 वोट बोगस नहीं थे, वो आपके वोट क्यों बोगस थे? मैं डिमेंड नहीं करता। क्या हाई कोर्ट के 3 जजेस ने आपके खिलाफ इकामे पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया? क्या 2018 में आप खुद नहीं कहते कि मैंने फ़ोन किया और मुझे जितवाया गया? 2024 आया, आज का आपके पास इलेक्शन कमीशन का वेरीफाइड लिस्ट नहीं है। ख्वाजा साहब, मेरी सबसे दरख्वास्त है, पहले मैं अपने फिर आपसे, अगर हमने यहाँ अपनी आवाम की नुमाइंदगी करनी है तो भूल जाए हम में से कौन अच्छा है। जिन्होंने पारसाई के दावे करने हैं वो अपने तरफ सारे दो करते। हमारे खानों में ये हम जो चाहते हैं बेहतर, हम ये चाहते हैं कि जी जो जनाब स्पीकर, आज मेरा एक अच्छा प्रोग्रेस हुआ है हमारी कमेटी में, एक अल्हम्दुलिल्लाह सब कमेटी बनी है। वो कमेटी में हम जाके प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ पे बात कर रहे हैं। मैंने सारी बातें की, मैंने उनको कहा स्पीकर साहब, मैंने ये जिक्र किया, कहा ये कि इम्यूनिटी के लिए रखो, MPA MNS के लिए कि 15 दिन पहले अरेस्ट नहीं होंगे, 15 दिन बाद अरेस्ट नहीं होंगे। मैंने कहा हमें VIP कल्चर नहीं चाहिए, हमें अरेस्ट करते जब चाहे अरेस्ट करें, हम VIP कल्चर नहीं चाहते, हम डिग्निटी और रिस्पेक्ट के लिए बैठे, VIP कल्चर के लिए नहीं बैठे। हमें स्पेशली ना खड़ा करो कि आपको VIP पास इशू, आप एयरपोर्ट में चले जाओ। हम क्यों में खड़े होंगे अमेरिकन की तरह, हम जाएंगे ब्रिटिश की तरह, हम सारे जाएंगे। जनाब स्पीकर, एक नई शुरुआत की ज़रूरत होगी अगर मुल्क को बचाना है। अगर हमने किसी थर्ड फोर्स को ये पावर नहीं देना तो एक स्टेप बैक भी जाना पड़े तो हमें जाना होगा। हमने करना अगर है तो मैं ख्वाजा साहब बस इनफ, हम चाहते यही है कि डिफरेंसेस रिजॉल्व करें। अगर एक दूसरे को ये दिखाएंगे कि किसका कितना रोल था, तो हमरी कभी कभी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता वो हमाम का, लेकिन इसमें किसी की हालत अच्छी नहीं है। ये सबसे बड़ी कर्ज हो कि घर से इब्तिदा कर लें और आवाम के पास वो छोड़ दो कि वो क्या करे। इसका सारा फैसला जो है ना तारीख़ करेगी, पब्लिक हमें जज करेगी, और ये दिन ज़रे गुजर जाते हैं, वक्त आएगा आवाम हमें जज करेगी हु इज़ ऑन द राइट साइड। शुक्रिया अमीर मुकाम साहब।